Good morning, students. Welcome back to our next part of class 7th English. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will read chapter 4, The Ashes That Made Trees Bloom. Ashes, what do you mean by the word ashes? Ashes means when something is burnt and the leftover remains, they are called the ashes. किसी चीज़ को जलाने के बाद जो राख बचती है उसको ash बोलते हैं. And the ashes that made the trees bloom. Trees you all know, पेड़ों को बोलते हैं. And blooming, what do you mean by the word blooming? Blooming means to have lots and lots of leaves and flowers, full of fruits. Okay, बहुत ही सुंदर और हरा भरा खुश tree. Okay, it's a very happy tree. So the ashes that made the trees bloom is the name of our chapter. ऐसी राख जिसने सूखे वृक्ष को, सूखे पेड़ को हरा भरा और फलों से भरा हुआ कर दिया. Okay, so this is the name of the chapter, and now we will read the story. What is it about and what kind of the ashes they were that made the trees bloom. So first we will read who wrote this chapter. This chapter is written by William Elliot Griffiths. He is the writer of this chapter, and this chapter is a Japanese folk tale. ठीक है, folk tale क्या होती है बेटा? It's a story which keeps on moving from one generation to another from a very long time. बहुत पुराने समय से जो कहानी चलती आ रही है पीढ़ियों दर पीढ़ी from one generation to another, that is called a folk tale. So this story is a Japanese folk tale and it's written by this author. Now, before we read, we need to know something about this story. Solace is a word and its meaning is comfort or consolation in a time of distress or sadness. See, when somebody dies, somebody very near and dear one of yours dies, then your relatives or your neighbors or your close friends, they come to solace you. Okay, वो सब आपको सांत्वना देने आते हैं ना, that is called solace. Okay, when you are in very much distress, आपने एक बहुत important चीज़, आपकी बहुत प्यारी चीज़ आपने खोई है, उस टाइम आप कितने मुश्किल में हो, आपका मन कितना दुखी है, उस टाइम जो आपको कंसोल करने, आपको जो हिम्मत देने लोग आते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं solace. All right, so first we will read it, then we will move on to the story. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. So who all are in this story? An old couple, a man and a woman. They are very old, and they had a dog which was their pet. So old couple and their pet dog. Okay, so this is how we will start the story. The neighbors are troublesome. Okay, neighbors of these kind couple, they are very troublesome. They are always creating nuisance and troubles each and every time. They are not at all cooperative. And the dog dies a sad death. What happens with the dog? He dies in the story, and we will read how did it happen. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. Now, the pet dog was like a baby for the old couple. Okay, they did not have any child. So, the pet dog was their baby. जो dog था, उनका पालतू जो dog था, वो उनके बच्चे की तरह था, क्योंकि उनको खुद को कोई संतान नहीं थी बेटा. तो उन्होंने उस डॉगी को बहुत ही प्यार से पाला था, as if it was their own baby. And when the dog died a sad death, the couple was very unhappy. वो बहुत ही परेशानी में थे. तो उनकी परेशानी को दूर कौन करने आता था? उस डॉग की spirit. Spirit means आत्मा. Okay, the spirit of the dog used to come in their dreams and solace them. उनको रात में सपने में उसकी आत्मा आती थी डॉग की, और वो उनको सांत्वना देती थी और दृढ़ बनाती थी. And support to his master in unexpected ways.
also the spirit of the dog helped and supported his master, that was the old couple, okay, and his wife in many ways. Unexpected मतलब आपने सोचे भी नहीं होंगे इतनी तरह के ways. All right, so he helped his master in even after his death. So what was the story? How did he had a very sad death? How did he help his master in unexpected ways? We will read in this chapter. Before that, let me tell you, this is a very beautiful and simple story. Okay, you all will like reading it, enjoy reading it. It has many ups and downs, okay. Sometimes you'll feel very happy, sometimes you'll feel very sad, sometimes you'll feel very angry on the neighbors or on the situation, okay. So you will have many ups and downs in your feelings while you are going through the story, but it's very nice, a very good story indeed, okay. So come, let's start. Daimyos, what does it mean? In 19th century Japan, 19वीं सदी के जापान में wealthy landowners जो होते थे, wealthy means rich, okay, wealthy means having lots of money, wealth. Landowners means जिनके पास बहुत सारी ज़मीन हो, okay, they were called the daimyos. Next is dame. What do you mean by the word dame? A title given to a woman as an honor because of something special that she has done. Either a lady has done some good work, या तो किसी लेडी ने बहुत अच्छा कोई काम किया है, या फिर उसको एक टाइटल मिला है. लैंड ओनर्स की जो वाइफ्स होती थी ना, दे वर कॉल्ड द डेम्स. या फिर कोई लेडी जिसने कोई बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल काम किया हो, दे वर कॉल्ड द डेम्स. कुशन, कुशन्स यू ऑल नो. कुशन्स हम सबके घर में होते हैं ना. दैट सॉफ्ट मटेरियल विच वी आर ऑलवेज यूजिंग बिलो आवर नेक वाइल स्लीपिंग और वाइल रेस्टिंग, है ना. कुशन्स होते हैं ना, हम सहारा लेके बैठते हैं, सोते हैं. सो कुशन मीन्स अ बैग ऑफ क्लॉथ स्टफ्ड विद अ मास ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, ओके. एक बैग होता है कपड़े का जिसके अंदर सॉफ्ट उसमें फिलिंग होती है जो हमको आराम देती है लेटते या सोते वक्त. Crepe. What do you mean by the word crepe? It means a light, thin material made specially from cotton or another natural material. Okay? It's a kind of soft cloth, you can see. ठीक है, एक soft कपड़े की बात हो रही है. Snug means comfortable. बहुत ही ऐसे cozy cozy होके और comfortable feel करना. That is called snug. Tidbit. इसका मतलब छोटे छोटे खाने के टुकड़े. A small but very nice piece of food. छोटे लेकिन बहुत ही अच्छे खाने के टुकड़े. Chopsticks. You know what chopsticks are? दो sticks होती हैं लंबी लंबी wooden sticks. Okay? They are used to eat noodles or any Chinese or Japanese dishes. Right? Chopsticks आपको पता है ना? One of the two thin piece of wood used for eating with. ओके खाने में जो लकड़ी काम में आती हैं, लंबी लंबी जो स्टिक्स होती हैं जिसमें हम नूडल्स को ऐसे करके खाते हैं लपेट के, दे आर कॉल्ड द चॉपस्टिक्स. सो नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. In early days, when the daimyos used to be in Japan, जब बहुत wealthy land owners होते थे जापान में, तो उस समय एक old couple था और उनके एक छोटा सा pet dog था. Having no children, they had no children. Okay? उनके कोई संतान नहीं थी. They loved it as though it were a baby. They loved whom? They loved the dog who was their pet dog as if it was their baby. वो उसको इतना प्रेम करते थे जैसे कि वो उनकी खुद की ही संतान हो. The old dame made it a cushion of blue crepe. और जो old lady थी, कौन? couple जो था ना, उसमें male और female दो लोग थे. couple means a husband and a wife. So the wife made a soft cushion of blue crepe. एक सॉफ्ट कुशन बनाया उस डॉग के लिए ब्लू कलर के सॉफ्ट से कपड़े का. एंड एट मील टाइम म्यूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम,
What was the name of the dog? It was म्यूको. ठीक है, डॉग का नाम था म्यूको और उसके लिए बनाया था एक कुशन जो वो मील टाइम मीन्स द टाइम व्हेन यू आर हैविंग योर मील्स. खाना खाने का जो समय है उसको बोलते हैं मील टाइम. सो एट मील टाइम म्यूको, फॉर दैट इट वॉज इट्स नेम, जो उसका नाम था, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. और वो म्यूको उस कुशन के ऊपर बैठता था इतने कंफर्टेबली बैठ के, और वो खाना खाता था मील टाइम पे, खाना खाने के वक्त. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks. What type of people they were? They were very kind. The couple was very kind. Okay? What did they do? While they were having their meals, they used to give small food pieces. Okay? Tidbits are small pieces of food. जूठा नहीं होता था, वो छोटे छोटे टुकड़े उसको देते रहते थे, जैसे ही वो फिनिश करता उसको और दे देते थे. ऑल्सो वॉट दे यूज टू गिव हिम टू ईट बॉइल्ड राइस एज मच एज ही वॉन्टेड. इतना चावल जितना उसको खाना था उसको मिलता था. किसको? म्यूको को. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वॉन्टेड, और जितना उसको चाहिए होता था उतना बॉइल्ड राइस भी उसको मिलता था. सी हाउ काइंड दे वर. ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दिया और बाकी हम खा रहे हैं. नो, उसको पूरा फुल स्टमक तक उसको खिलाते थे. लेट्स टेक द मीनिंग्स. डम्ब मीन्स नॉट एबल टू स्पीक, जो बोल नहीं सकता, दैट इज डम्ब. अ बीइंग विद अ सोल, इसका क्या मतलब है? लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड. ओके, द डॉग वॉज अ बीइंग विद अ सोल फॉर द कपल. जो डॉग था, जो डॉगी था, उनका पेट, वो उन लोगों का बच्चे की तरह था. ठीक है. शोइंग इमोशंस, लाइक दिस फ्रेज इज हैविंग इमोशंस, इसमें भावनाएं हैं. ठीक है. हो, अ गार्डन टूल विद अ लॉन्ग हैंडल दैट इज यूज्ड फॉर टर्निंग द सॉइल एंड फॉर रिमूविंग प्लांट्स दैट यू डू नॉट वांट. हो क्या होता है बेटा? आई विल मेक इट हियर फॉर यू. ऐसा कुछ. ओके, ऐसा कुछ होता है जिससे आप मिट्टी को अलग करते रहते हो ऐसे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ हो. तो जो ये हो था, इसका मीनिंग हम पढ़ रहे हैं. इट इज अ गार्डन टूल विच इज यूज टू टर्न द सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड. स्पेड, स्पेड यू ऑल नो, फावड़ा. ठीक है, अ टूल दैट यू यूज फॉर डिगिंग. ठीक है, फावड़ा जिसको बोलते हैं. देन इज हेरन. व्हाट इज इट? इट्स अ बर्ड, a large bird with long neck and long legs. Okay, it's a heron is a bird having large neck and large legs. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. All right, because the dog was loved as if it was their child and he was treated so good, he also liked his master and mistress. Okay, the old man, being a rice farmer, the old man was a rice farmer. Okay, he used to grow rice in the paddy fields. Went daily with hoe or spade into the fields. जो old couple था, उसमें जो आदमी था वो क्या करता था बेटा? वो राइस उगाता था, पैडी उगाता था. ठीक है, चावल की खेती करता था और डेली अपने खेत में जाता था फावड़े को और उसको लेकर, हो को और स्पेड को लेकर. into the fields, daily जाता था. And what did the dog do? It followed him nicely. वो उसको follow करता था. Working hard from morning till O10 Morning मतलब वो हार्ड वर्क करता था सुबह से लेके कब तक? O10 इसका क्या मतलब है? O10 means sun. जापान में सन को बोलते हैं O10. ठीक है. As the sun is called in Japan. जापान में सन को बोलते हैं O10. Had gone down behind the hills from morning till evening. Sun has gone down behind the hills means सूरज छिप गया है. और ऐसा कब होता है? Obviously in evening. सूरज जब तक छिपता था और सुबह जब वो मेहनत करना स्टार्ट करता था तब से लेके शाम तक वो हार्ड वर्क करता रहता था. Every day the dog followed him to work and every day the dog used to follow him to his fields.
never once harming the white heron, and the dog never harmed the white herons. जो वो चिड़ियाएँ थीं उनको कभी डॉग ने हार्म नहीं किया. That walked in the footsteps of the old man. और जो हेरन्स थीं वो ओल्ड मैन के पैरों में चलती रहती थी. ओके, दे यूज टू वॉक वाइल द मैन वॉज वॉकिंग टू पिक अप द वर्म्स. और वो कीड़े मकोड़े खाने के लिए उसके साथ साथ चलती थी. ठीक है, ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जो ओल्ड मैन था, हमने पढ़ा था ना अभी, दैट ही वॉज वेरी काइंड, बहुत दयालु था. तो वो क्या करता था, जो सॉइल होती है उसको वो अपने हो से ऐसे उल्टा कर देता था. ओके, इट यूज टू टर्न द ग्रास अपसाइड डाउन. जो घास होती थी उसको खोद के उल्टा कर देता था, तो उसके नीचे जो भी वर्म्स होते थे वो हेरन्स खा लेते थे. ठीक है, तो वो कितना दयालु था कि वो उन हेरन्स की भी चिंता कर रहा है ना, ताकि वो उनको फूड प्रोवाइड कर पाए किसी भी तरह से. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग. ही वॉज वेरी काइंड, वी नो. दैट हैड लाइफ. जिस भी चीज़ में जान है, जो भी जिंदा चीज़ है, उसके लिए उसको बहुत दया रहती थी. एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. नाउ क्या करता था ये, अभी जो मैंने आपको बताया. ओके, नाउ लेट्स टेक द मीनिंग. टर्न्ड अप मीन्स डग अप. ठीक है, खोदा. किससे? हो से. सॉर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्ड? जो ऊपर की लेयर होती है, मिट्टी की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसमें थोड़ा बहुत घास लगा होता है, उसको नीचे की तरफ टर्न कर देता था वो. सॉर्ड इज द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड विद द ग्रास ग्रोइंग ऑन इट, और द टर्फ, द टॉपेस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल, दैट इज कॉल्ड सॉर्ड. ऑन पर्पस मीन्स इंटेंशनली. वो जानबूझ के करता था. जानबूझ के क्यों बेटा? क्योंकि वो उन बर्ड्स को फीड करना चाहता था, है ना. मोशन, to make a movement usually with your hand that tells somebody what to do. मोशन क्या होता है? हम हाथ से किसी को इशारा करके बोलते हैं ना, ऐसे इधर आओ या ये काम कर लो, हम ऐसे बोलते हैं ना इशारा करते हुए कि ऐसा मत करो या उधर जाओ उधर, ऐसा कुछ हम इशारा करते हैं. दैट इज कॉल्ड मोशन. ओके, सो द मैन यूज टू टर्न अप और डिग अप द सॉइल एंड ही फीडेड द बर्ड्स, द हेरन्स एज वेल. One day the dog came running to him. और एक दिन अचानक क्या हुआ, वो डॉग जो था उसका पेट, वो भाग के उसके पास आया. Putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. और डॉग ने क्या किया, अपने जो पॉज थे, उसके जो पंजे थे, वो उसके कपड़ों पे लगा के और उसको अपने हेड से इशारा कर रहा था, उधर चलो, उधर, दूसरी तरफ. ठीक है, वो इशारे में उसको समझाना चाह रहा था अपने मास्टर को, दैट वी हैव टू मूव टू दैट साइड, प्लीज कम अलोंग विद मी. ओके, द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग. और जो ओल्ड मैन था उसने पहले तो यही सोचा कि उसका जो पेट है वो सिर्फ खेल रहा है. ठीक है, वो सिर्फ एक खेल है उसके लिए, ही इज जस्ट प्लेइंग, एंड डिड नॉट माइंड इट. और उसने कुछ उसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया. ठीक है, नाउ winning. Okay, the word is winning, means to complain about something in an annoying या crying voice. ठीक है, तो डॉग विनिंग कर रहा था. कैसे? कोई भी आवाज़ निकाल रहा था वो कि चलो मेरे साथ. सी, डॉग्स कांट स्पीक बट दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, है ना. तो विनिंग इज अ टाइप ऑफ अ साउंड विच दे यूज टू मेक वाइल दे वॉन्टेड टू आस्क द मास्टर दैट they have to move somewhere. Okay, so winning कौन कर रहा था? dog कर रहा था. scratch, to rub your skin with your nails. scratching means this. skin को nails से हम scratch करते हैं with your nails, especially because it is irritating you. क्योंकि वो आपको irritate कर रही है, आपको वो problem कर रही है या खुजली आ रही है आपको. ठीक है. pile, pile means ढेर लगा देना. ठीक है, a number of things lying on top of one another, or an amount of something lying in a mass. बहुत सारा ढेर. a pile of files, a pile of books, okay, or anything. gleamed means shone या glittered. gleam का मतलब चमका. ठीक है. now but the dog kept on winning and running to and fro for some minutes.
तो डॉग ने क्या किया, जब उसके मालिक ने उसकी बात नहीं सुनी तो डॉग ने क्या किया बेटा, टू एंड फ्रो, इधर उधर। टू एंड फ्रो क्या होता है, एक बार इधर एक बार इधर। वंस यू मूव दिस साइड अगेन टू दिस साइड देन बैक टूवर्ड्स दिस, रिपीटेड एक्शन ऑफ मूविंग लाइक दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो। अच्छे से एग्जाम्पल देती हूँ, आप स्विंग पे झूला झूलते हैं ना, व्हाट हैपन्स, आप आगे जाते हैं पीछे, देन अगेन यू कम, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो जो डॉगी था वो एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, वो मनाने की कोशिश कर रहा था अपने मास्टर को। ओके, एनी हाउ ही वॉन्टेड टू परसुएड हिज मास्टर। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग a few yards to a place where the animal began a lively scratching. Now, what did it do? The dog was successful in persuading his master. उसने मना लिया अपने मास्टर को, और अब डॉग ने क्या किया बेटा, वो उसको कुछ दूर लेके गया और वहाँ जाके उसने मिट्टी में खोदना स्टार्ट किया. He started scratching the mud. Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. Who thought this? The old man. ओल्ड मैन ने सोचा कि हो सकता है या तो यहाँ पे कोई हड्डी होगी, है ना, जो बरिड है इसमें, जो मिट्टी के नीचे दबी हुई है, या फिर कोई फिश का पीस होगा. इधर इट्स अ बोन और अ पीस ऑफ फिश, ओके, बरिड अंडर द सॉइल. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ. और ऐसा सोचते हुए उस ओल्ड मैन ने अपना स्पेड या अपना फावड़ा जो था उसको मिट्टी को ऐसे खोदने के लिए कोशिश किया. When lo, a pile of gold gleamed before him. Or, surprise to them, there was a pile of gold. एक ढेर लगा हुआ था, किसका, गोल्ड का, और it gleamed, वो चमक रहा था, before him, उसके सामने. तो डॉग ने क्या दिखाया, डॉग ने दिखाया पाइल ऑफ गोल्ड, एक सोने की ढेर. किसको, अपने मास्टर को. तो इस जगह पे डॉग लाना चाह रहा था. ओके, दिस वॉज द प्लेस द डॉग वॉन्टेड हिज मास्टर टू कम एंड ही आस्क्ड हिम टू फॉलो हिम. ठीक है, नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द ओल्ड मैन, this is the dog, and it seems he is so happy, okay, and he is amazed, he is having so many expressions on his face कि ऐसा कैसे, इतना सारा पैसा एकदम से कहाँ से आ गया, और ये डॉग ने कैसे ढूंढा. ठीक है, and he is very happy looking at his master, that see what did I do for you, and this master is amazingly looking at the gold coins, और वो ऐसे सिक्कों को देख रहा है. So this is how the dog helped his master initially. Okay, what happens now in the next part we are going to discuss. So I hope you all understood this part very well. Now we will discuss the next part in our next class. Until then, take care, have a great day beta.